Namaskar, dear IAS aspirants, YouTube viewers, and podcast listeners. Today, in Dr. GGS IAS Jan, I am taking up two problems on ethics. One is related to Citizen Charter, how it was evolved, and for whom it is meant, what are its advantages. Second problem is related to acquisition of tribal property, land, rural areas and hill dwellers areas project development. How we go for compensation, resettlement of displaced persons, what problems we face. This is also very good question for IAS interview. In IAS interview, you can be asked as to whom for Citizen Charter is meant, what are its merits, characteristics, and is it panacea? So I start with Ethics GS 4 paper 2019 question 4A, which is for marks 10 words 150 only. Even if you know more, you don't write more, only 150 words. Now question is, explain the basic principles of Citizen Charter movement and bring out its importance. So we start with, first I will tell you about its origin, so you can note down the words and then start writing on Citizen Charter. How it was evolved? It was evolved in 1991 by John Major's conservative government in UK, and its name was Services for the People. It was relaunched in 1998 by Labour government under Tony Blair. But in the meantime, France, Australia, Belgium, they adopted it in various years, 92, 95, India adopted it in 97. Other countries also later on adopted it, like Malaysia, and even OECD countries adopted it 1996. So what it means, you remember that during elections in democracy, we see that parties' manifesto is announced. What is this manifesto? They promise certain hassle-free government because they rule over the service providers, bureaucracy. How they serve the people? How they get all benefits in time-bound manner? This is the basic principle, and they want to make it in a manual form. Citizen Charter means in 25 days you will get scheduled caste certificate. In ration card you will get 20 days. All queries are to be met at once, not in piecemeal. So they have mystified the rules, regulations. This is the beauty of Citizen Charter. See, in democracy, as Abraham Lincoln, US President, once informed that democracy is a rule of the people, for the people, and by the people. In 2005, in India, RTI Act was promulgated. It also helped in citizen-friendly government. So in Delhi, where I worked as the Nixon IAS officer, you know, RTI Act was promulgated in around 2001, and by 2013 there were 400 services which were put on SLA, services legal delivery for the public. So ease of doing business for businessmen, ease of life for ordinary citizen. So we are building bridges through bureaucracy between citizen and administration. Objective you have to write, आपकी सरकार आपके द्वार. तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है. प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर में क्वालिटी है, चॉइस है, अकाउंटेबिलिटी. तो प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर आर responsive government, transparent government, and accountable government.
तो गवर्नमेंट शुड बी सिटीजन सेंट्रिक, गुड गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, grievance redressal are its hallmarks. In everything is to be done in time-bound manner. So I have given you sufficient material to be written for 150 words, 10 marks. Now I take up another very good question. I worked as services. I worked as secretary in Andaman Nicobar, secretary tourism. We acquired land. Some government land was put on some projects. There were Aboriginal tribes. You know, Aboriginal tribes think that all areas belong to them. These trees, fruits, land, water, everything belongs to them. If you enter in their area, they think that you are encroacher. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं उन्हीं के भले के लिए, लेकिन उनकी भलाई का पता तो है कि उनका भला किसमें है, हाउ दे विल फील हैप्पी. तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए 2016 का क्वेश्चन नंबर 10 एथिक्स का जो GS4 पेपर है, तो एक इसमें PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ये क्वेश्चन इज लाइक दिस: land needed for mining, dams and other large scale projects is acquired mostly from Adivasis, hill dwellers and rural communities. The displaced persons are paid monetary compensation as per the legal provisions. However, the payment is often tardy. In any case, it cannot sustain the displaced families for long. These people do not possess marketable skills to engage in some other occupation. Occupation नहीं है, occupation पढ़ना है. They end up as low-paid migrant laborers. Moreover, the development goes to industries, industrialists, and urban communities, whereas the costs are passed on to these poor, helpless people. This unjust distribution of costs and benefits is unethical. Suppose you have, now this is the question for you. Suppose you have been entrusted with the task of drafting a better compensation cum rehabilitation policy for such displaced persons. How would you approach the problem and what would be the main elements of your suggested policy? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 1/3 जो 250 वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं आपको उसी प्रॉब्लम में से मिल जाते हैं. जैसे इस प्रॉब्लम में क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं, किन के लिए हम ज़मीन ले रहे हैं और किसकी ज़मीन ले रहे हैं. ट्राइबल, दे में भी एबोरिजिनल ट्राइब्स और मध्य प्रदेश ट्राइब और इन अदर एरिया, हिल डेवलपर्स जहाँ बाढ़ वगैरह आती हैं, फ्लड एरिया, और जो हिल एरियाज में रहते हैं उनके फॉरेस्ट के कुछ राइट्स हैं. देन रूरल पीपल. तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. प्रोजेक्ट्स इसके लिए एक हम PPP में प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ गवर्नमेंट की लैंड होती है, कुछ इन लोगों की हम लैंड लेते हैं. शील. तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ वी एक्वायर लैंड, व्हाट आर एक्विजिशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ PPP वर्क, whether we make the persons who are displaced as partner in this development. No, not till now, but it can be there. I give you on my own example. In Andaman Nicobar, when we were developing some projects for hotel, resorts, etc., I made it a point that the concessionaire, the project developer, reserves at least 40 to 50% posts for local persons. They will get job. Also, he will provide local people skill development. See, these are very good. You can provide compensation, you can resettle them, but main problems comes whether they will
land up as a migrant laborers. You know, in Delhi, when I was land acquisition collector in 1980s, we acquired the land and the compensation was given in enormous money. What did they do of this Delhi walas, villagers? They will use this money only drinking and purchasing luxurious cars, and within 20 years they will come down as a pauper. तो इसमें अगर हमने उसको ध्यान रखा होता, एक अच्छी पॉलिसी उसको डीडीए की थी कि 250 गज की ज़मीन अगर एक्वायर होती है आपकी, तो आपको एक जो प्लान डेवलपमेंट में जो कॉलोनी बनती है डीडी, उसमें एक 250 गज का प्लॉट मिलेगा, एक बीघा जमीन पर कम से कम 1 बीघा 250 गज का प्लॉट। ये एक बहुत अच्छी चीज़, कम से रहने की जगह। तो शराब और उसके नशे में वो सारा पैसा बिगाड़ देते हैं। यही एक प्रॉब्लम है आपकी माइग्रेंट लेबरर्स। अंडमान में जब अंडमान ट्रंक रोड बना था 20 साल पहले, 25 साल पहले, तब वहाँ जो एबोरिजिनल ट्राइब को पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। तो वो अपने आप का दुश्मन समझते थे पीडब्ल्यूडी के लोग, और उनमें उनको मारते थे, पीडब्ल्यूडी वाले उनको मारते थे। 4-5 हज़ार जो जारवा ट्राइब्स हैं, they were killed, and in turn some PWD persons were also killed. तो जब भी रिहेबिलिटेशन और उसकी बात होती थी तो सुप्रीम कोर्ट तक केस आते थे और कहा जाता था कि इनका एरिया में आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इनके रीसेटलमेंट, इनके रिहेबिलिटेशन, डिस्प्लेस पर्सन का बहुत ध्यान रखना है। एक शेख हुसैन कमेटी होती थी, वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के बारे में, उसके बारे में, तो यानी सरकार इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो मैं आपको कुछ इनपुट्स दे रहा हूँ कि जवाब तो आप दे देंगे, लेकिन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है और भी कहीं आ सकता है, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, कैसे करेंगे। तो इन पे आगे हम कैसे करेंगे कि देखिए, वर्ल्ड बैंक के लिए जैसे मैं आजकल काम करता हूँ, उसमें क्या होता है, अलग से एक पॉलिसी होती है। सबसे पहले वो देखते हैं, सबसे पहले बच्चों का रिहेबिलिटेशन, फिर महिलाओं का करेंगे। सबसे पहले उनको कंपनसेशन पहले मिलेगा एडवांस में, इतने दिनों तक का उनको पैसा मिल जाए कि जब तक वो अपने नॉर्मल उसी साइकिल पर आए, जब तक उनको पैसा उनके पास रहना चाहिए। तो ये उनका देखना है, उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट का उनको बताओ, भाई तुम्हारे को डिस्प्लेस किया जा रहा है। अभी सारनाथ का जैसे डीपीआर बनाया तो उनको बताया गया कि आपके राइट्स ये हैं। सबसे पहले उनको राइट्स के बारे में बताया गया कि आप अपने सारे जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट विच आर द फैमिलीज हु आर टू बी डिस्प्लेस्ड। फिर आएगा उसके लीगल प्रोविजंस क्या है, कंपनसेशन लीगल। व्हेन आई वाज लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, we could not give compensation as we wanted or as they wanted. We were following the legal norms. ये एक बहुत पुराना एक्ट होता था, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1876 वगैरह का। अब तो वो चेंज हो गया 2000 में, पर लेकिन उसमें क्या था, उसमें ये था कि आप स्टैम्प ड्यूटी और उसमें जो डील होती थी, सेल डील, वो लास्ट में जितने अमाउंट की होती थी उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते थे। तो क्या होता था, 1 बीघा ज़मीन में हम 12,000 रुपया पर बीघा देते थे, और वो 1 बीघा में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाते थे डीडीए और प्लान डेवलपमेंट में, और वो ऑलमोस्ट बैगर की तरह। तो लेकिन क्या होता था, कुछ प्रोविजंस है, सोलेशियम मिलता था, एडीजे के यहाँ उनको वो उनका पैसा बढ़ जाता था, फिर हाई कोर्ट में जाते थे, पैसा काफ़ी बढ़ जाता था, कुछ में तो काफ़ी पैसा मिलता था। दे यूज टू रिक्वेस्ट अस, साहब हमारी ज़मीन एक्वायर करा लो। तो ये प्रोविज़न, लेकिन आदिवासी को तो बेचारों को अपना ही मन नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है कि आप जब पॉलिसी मेकर हैं, कंपनसेशन तय कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे बताएंगे। पहले तो उनको बताएंगे आपके राइट्स क्या हैं। ट्राइबल्स हैं तो उनके लिए कानून कौन से हैं, जैसे कि एक तो है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज
एक्ट 1996 पीसा एक्ट कहलाता है, उसमें राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। फिर एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया, FRA, उसमें जो फॉरेस्ट में ट्राइबल्स थे उनके राइट्स के बारे में कि दे कैन यूटिलाइज दिस लैंड एज पर देयर कस्टम्स। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि 2006 में जो एक्ट आया तो उनके 5-10 साल बाद भी जो टोटल उनके राइट्स को एक्चुअली सिक्योर किया गया वो हार्डली इट वाज 3%। इसका मतलब ब्यूरोक्रेट्स को सर्वेंट की तरह काम करना है, अफसरों की तरह काम नहीं करना है। ये आप जब नौकरी में आए तो अपना एप्टीट्यूड चेंज करना है, एक सोचने का माइंडसेट कि किन गरीबों के लिए आप काम कर रहे हैं। अब एक बहुत अच्छी बात है, जैसे हम सुनते हैं कि गरीबों के बेटे IAS बन रहे हैं, तो उनको अपना ध्यान है कि किस गरीबी से आए हैं लोग। तो ये कई चीज़ें हैं, क्या अप्रोच लेंगे, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, कम्युनिटी का कैसे आप उनको एम्यूनिटीज़ मुहैया कराएंगे, फिर ग्रीवांस रिड्रेसल में उनकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे। पहले तो उनको बताएंगे क्या उनके राइट छिन रहे हैं, क्या क्या उनके राइट्स हैं, फॉरेस्ट पर प्रोड्यूस पर उनके राइट हैं, तो फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनको देनी है। क्या क्या और एलिमेंट्स हैं जो लिखने के लिए आपको मैं बताऊं, क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द लॉट अबाउट कम्युनिटी राइट्स एंड देयर प्रोविजंस, ensuring that implementation of laws of community forest provisions are not diluted. Nodal tribal departments must be consulted. One of their experts should be member of your जैसे अमिकस क्यूरी या हाई कोर्ट एक अपना कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, वैसे ही आप एक्सपर्ट अपनी कमेटी में बनाइए कि ही विल टेल यू हाउ दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। जैसे झरवाज होते हैं अंडमान निकोबार में, वो मिट्टी को अपने बदन पर लपेटते हैं, तो अगर उनको वहाँ से शिफ्ट करेंगे तो मिट्टी, माटी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैन यू ब्रिंग देम ऑल दैट काइंड ऑफ ओरिजिनल लैंड विच दे वर एक्वायरिंग अर्लियर, दे वर यूटिलाइजिंग अर्लियर। आपने सुना होगा कि नर्मदा बचाओ अभियान में कितना झगड़ा, कितना क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक आम जनता की प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट्स समझने में गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यही प्रॉब्लम आपके लिए है, यही आपके लिए इंटरव्यू है, और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि आप क्या क्या चीज़ें। एक सबसे बड़ी चीज़, एक तो जॉब का मैंने बताया कि एक जो अर्निंग मेंबर है उसको जॉब ज़रूर मिलना चाहिए। तो आपने देखा है जो महिला है, जो आदमी है, जो अर्निंग मेंबर है, उसको जॉब कम से कम एक को मिले। एक और बहुत अच्छी चीज़, इम्पार्टिंग स्किल्स टू द डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स, क्योंकि नहीं तो वो माइग्रेंट लेबरर बनेंगे। अगर आप उनको स्किल देंगे, 12वीं पास है तो वेटर का, या अगर BA पास है तो उसको स्टूअर्ड का, मैनेजर का, फूड मैनेजर अगर रिजॉर्ट बना रहे हैं, अगर एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं तो गाइड की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो स्किल आपने ये माइग्रेंट लेबरर ना बन जाए, स्किल डेवलपमेंट करना है। और जो फॉरेस्ट के लॉज हैं, अगर उसमें वो अलाउ करने का है राइट कि वो प्रोड्यूस बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आफ्टर एक्विजिशन दे में बी अलाउड, देन देयर शुड बी सस्टेनेबल प्रोसीजर फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये एक सारे इतने प्रोविजंस हैं, तो 250 वर्ड्स में आपको जब ये लिखने हैं तो आप एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन है, क्या करेंगे, कौन से लॉज हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ये इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जब पूछा जाए कि आप कैसे उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनका दर्द जानेंगे। तो इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स कि आई विल अप्लाई दिस लॉ, आई विल अपॉइंट सम पर्सन्स experts into my committee and all that, you will be able to not only give good answers, you will actually be providing good solutions. Thank you very much for IAS Gyan by Dr. GGS. Namaskar.